رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، عملے کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی۔ ڈپٹی میئر کی ہدایت پر انڈر پاسز اور شاہراہوں پر واٹر کارپوریشن کی مشینری بھی نصب ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر سلمان عبداللہ مراد کا عملے کو ضروری اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹاؤن چیئرمینز بھی عوام کی خدمت میں پیش چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے آج سے 18 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں بارش ہوگی یا نہیں، ابھی شہریوں کو کرنا پڑے گا مزید انتظار۔ حکومت نے بھی تیاری کر لی، رین ایمرجنسی نافذ، عملے کی چھٹیاں منسوخ، مگر آج بارش نہ ہوئی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے آج سے 18 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی کی تھی۔ شہر میں دن بھر سورج کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 16 اپریل سے تیز بارش کا امکان ہے۔ کل البتہ امکان ہے تو ہلکی بارش کل بھی، لیکن کل پھر شہر کے بیشتر حصوں میں ہو سکتی ہے۔ لائٹ رین ہی ہے ان 2 دنوں میں ایکسپیکٹڈ، اور اس کے بعد پھر 17 اور 18 کو امکان ہے کہ اچھی بارش ہو جائے، کیونکہ وہ سسٹم جو ایک اور ویو داخل ہوگی وہ بلوچستان کے جنوبی حصوں سے، جو ساحلی علاقے ہیں وہاں سے ہوتی ہوئی پھر کراچی کی طرف وہ ہوائیں آئیں گی، تو اس میں مطلب یہ کہ نسبتاً اچھی بارش متوقع ہے، کسی جگہ پہ ہیوی فال بھی ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میئر کراچی کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت، کہا بارش کے دوران شہریوں کو مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی میئر سلمان مراد سے بھی رابطہ کیا، ٹاؤن چیئرمینز کو دورے کرنے کا حکم دے دیا، چیف سیکرٹری کو انتظامیہ کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی میئر نے انڈر پاسز اور شاہراہوں پر واٹر کارپوریشن کی مشینری بھی نصب کرنے کی ہدایت کر دی۔ سلمان مراد کا عملے کو ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف سیکرٹری کو انتظامیہ کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ خود صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ واٹر کارپوریشن نے بھی حکمت عملی تیار کر لی۔ شہر میں بلدیاتی نمائندوں کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ بارش کی پیشگوئی کے باوجود شہر کے بیشتر نالے صاف نہ کیے جا سکے۔ کورنگی نمبر 1 اور 2.5 نمبر کے نالے کچرے اور گندگی سے بند ہو گئے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے طاہا ملک کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں بارش کا امکان، بلدیاتی نمائندے غفلت کی نیند سونے میں مگن۔ کورنگی کے 2 بڑے نالے انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا آج بارشوں کے حوالے سے جاری نوٹیفیکیشن بھی بلدیاتی حکومت کو ہوش میں نہ لا سکا۔ کورنگی 1 نمبر اور 2.5 نمبر کے نالوں میں کچرے کے ڈھیر، حفاظتی دیواریں کہیں بوسیدہ اور کہیں غائب ہو گئیں۔ کورنگی نمبر 2.5 کی سڑک کے ساتھ گزرنے والے نالے میں کچرے کی بھرمار۔ شہری کہتے ہیں ہر بارش میں نالے کا پانی سڑک پر آ جاتا ہے۔ کچرا اوپر آ جاتا ہے، روڈوں میں پانی بھر جاتا ہے، آنے جانے والے کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو 8-9 مہینے سے یہ نالا صاف نہیں ہوا، اس میں دوبارہ کوئی آیا بھی نہیں ہے۔ کورنگی نمبر 1 کے نالے کی حفاظتی دیوار غائب، کچرے کے ڈھیر، علاقہ مکینوں نے دیوار نہ ہونے کے باعث بارش میں حادثے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ تقریباً 9 مہینے سے ایسی ہے، کوئی صفائی کرنے والا آئے تو یہ صفائی ہو جائے، ابھی بھلے اس کے کچرے کے اوپر آدمی گھومتا رہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بارش کے دنوں میں یہ روڈ کے اوپر پانی آ جاتا ہے، حادثے ہوتے ہیں، دیوار نکالتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پھر یہ پانی بھی باہر آ جاتا ہے اور پانی بہت تیزی سے آتا ہے۔ بارش کی پیشگوئی کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ اداروں اور میئر کراچی کو اقدامات کا حکم دیا ہے، مگر اب تک نالوں کی صفائی نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر حماد کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ عید کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی۔ سائد سپر ہائی وے تھانے کی حدود میں قائم غیر قانونی سوئمنگ پول میں 11 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق ہوا۔ مقتول کے اہل خانہ نے سائد سپر ہائی وے تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا۔ تفصیلات جان لیں گے سلمان سلیم کی رپورٹ میں۔ ناک سانحہ عید کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں۔ بچہ سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے جان کی بازی ہاری۔ سائد سپر ہائی وے تھانے کی حدود میں غیر قانونی سوئمنگ پول میں ڈوب کر 11 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت 11 سالہ صاحب علی چانڈیو کے نام سے ہوئی۔ مقتول کے والد نے بتایا کہ صاحب علی شام 6 بجے سوئمنگ پول میں نہانے گیا تھا۔ جب بچہ ڈوبا تو پول کا سپروائزر موجود نہیں تھا۔ غیر قانونی کھول کر 6-7 فٹ پانی ہے اندر، آپ دیکھ لو تو بڑا پانی ہے جس میں بچہ ڈوبا ہوا ہے۔ انصاف کر لو سر، میرا یہ عرض ہے تو انصاف کرو، میں غریب آدمی ہوں، میرا بچہ ڈوب گیا ہے، میرا انصاف کرے کو۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر چلنے والا سوئمنگ پول 1 ماہ قبل کھلا ہے۔ انویسٹیگیشن پولیس نے اب تک جائے وقوع کا دورہ تک نہیں کیا۔ پہلے اس ہاسپٹل میں لے گیا، پرائیویٹ ہے،
उन्होंने बोला आधा घंटा, ये बोल रहा था ना सांस था, उन्होंने तो मालूम करो, उन्होंने बोला आधा घंटा पहले फौत हो चुका था। यहाँ पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो यहाँ आया ही नहीं है। उसकी सीरियसनेस पुलिस की ये है कि वो एक दिन यहाँ पर आए, उन्होंने कहा जी हम स्विमिंग पूल की चाबी भूल गए, जब चाबी हमें मिलेगी तो फिर हम आकर देखेंगे ये कैसा है, कितना गहरा है, बच्चा कहाँ डूबा, अभी तक वो नहीं आए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अहले खाना ने स्विमिंग पूल के मालिक। आगे बढ़े और आपको बताएं, साउथ जोन पुलिस का शुबा इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम हो गया। पुलिस ने साइट मेट्रोवल में 1.25 करोड़ की डकैती और दोहरे कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अवाम से मदद मांग ली। गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 25 लाख रुपए इनाम के इश्तिहारात सोशल मीडिया पर चलाने शुरू कर दिए। डीआईजी साउथ जोन के जाने से मदद करने वालों के लिए 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। इस हवाले से इश्तिहारात सोशल मीडिया की जीनत बन गए हैं। 8 अप्रैल को साइट मेट्रोवल में डकैती और कत्ल की खूनी वारदात हुई थी, जिसमें डाकू ने मुजामत पर पोल्ट्री कंपनी के 2 मुलजमान को कत्ल कर दिया। पिछले 11 दिनों में जराइम पर 50% काबू पाने में कामयाब हुए। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच का दावा, कहते हैं इस दौरान 8 मुलजमान को हलाक किया गया। तफसीलात सलमान सलीम की रिपोर्ट में। कराची में जराइम में कितनी कमी हुई, डीआईजी वेस्ट का बड़ा दावा सामने आ गया। डीआईजी वेस्ट की एसएसपी सेंट्रल और वेस्ट की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इरफान बलोच ने दावा किया कि पिछले 11 दिनों में 50% स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया है, जबकि 8 मुलजिमान को हलाक किया गया है। और CPLC की फिगर जो अभी मेरे सामने मौजूद है, वेस्ट जोन में हमने -50 यानी कि 50% क्राइम को हम नीचे लेके आए इन 11 दिनों में। जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं उसके नतीजे में हम टारगेटेड जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उनके नतीजे में 50% से ज़्यादा क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम है वो नीचे गया है। डीआईजी वेस्ट का मजीद कहना था कि रवा माह 3 अप्रैल को बिलाल कॉलोनी में नौजवान को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम मुकाबले में मारा गया है। मुलजिम का साथी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेंट्रल पुलिस ने SSP साहब की सरबराही में बड़ा ज़बरदस्त काम किया और CCTV की मदद से हमने उनको ट्रेस किया, उनका हमने रूट बनाया। एट द एंड ऑफ द डे आज सुबह को उनके साथ इनकाउंटर में वो जो बाबर है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। उसका एक साथी है जो इस वारदात में है, उसको भी हमने ट्रेस कर लिया है, इंशाल्लाह जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। डीआईजी वेस्ट ने चोरी के मोबाइल फोन्स के IMI नंबर तब्दील करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का दावा भी कर दिया है। कैमरामैन शकील के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस मुस्तकिल जज बन गए। हल्फ बर्दारी तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब हल्फ बर्दारी में मुस्तकिल होने वाले जजेस के अहले खाना भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने तमाम जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, ये कि बहैसियत जज हाई कोर्ट सिंध मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुस्तकिल होने वाले 6 जजेस को 2023 में एडिशनल जज तैनात किया गया था। अब सिंध हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 32 हो गई है। अब भी मजीद 8 जजेस की असामियां खाली हैं। मुस्तकिल जजेस का हलफ उठाने वालों में जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिनहास, जस्टिस जवाद अकबर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली हकड़ो शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास इतवार को गड़ी खुदा बख्श में ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी के जलसे के इंतजाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पुलिस और इंतजामिया को 14 अप्रैल को जलसे की सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम के लिए मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना की इंतजामिया को हिदायत की कि मज़ार पर वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 40 से बढ़ाकर 56 कर दी जाए, ताकि जलसे में शिरकत करने वाले लोगों को आसानी से रसाई मुमकिन हो सके। उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए ट्रैफिक के मुनासिब इंतजाम पर भी जोर दिया।
बात करें लोड शेडिंग की तो गर्म मौसम में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। उस्मानाबाद के गाजी नगर में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। इलाका मकीन बिजली की लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। तफसीलात वसीम अफ्तार की इस रिपोर्ट में। मौसम गर्म होते ही लोड शेडिंग के जिन बेकाबू उस्मानाबाद गाजी नगर के मकीन 12 घंटे तक की बिजली की बंदिश से आजिज आ गए। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की बंदिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गर्मी में बिजली के तातुल से बच्चे, मरीज और ज़ईफ़ उम्र अफराद ज्यादा परेशान होते हैं। पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का भी सामना है। गर्मी जो है ना और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 12 और बिल ऐसे ही आते हैं। बिलों का तो इतना मसला है, और हमारे तो मीटर भी लगा दिए, दोबारा केबिल भी डाल दिया, अब और मसला हो गया। लेकिन यहाँ का भाई मसला है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग कम कराई जाए तो और ज़रा वो है, क्योंकि गर्मी आ रही है अब बच्चे, क्योंकि हमारे घर में ना यूपीएस है ना कोई और चीज़ है, हमारे को बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशान है, दिल की मरीज़ा हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर की 12 घंटे क्या 12.5 घंटे की लोड शेडिंग है। यहाँ कोई बोलने वाले नहीं है, हर कोई अपने मर्जी कर रहा है, यानी कैसी वाले हर कोई, यहाँ बोलने वाले हैं नहीं। अब जो नई हुकूमत आई है, जो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट आई है, हमारी यही अपील है कि कम से कम ये लाइट का तो कम से कम दुरुस्त किया जाए कि हर काम लाइट से होता है। अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, अगर हम किसी के पास जाते हैं तो वहाँ लाइट नहीं होती, तो वहाँ पे घंटों घंटों बैठना पड़ जाता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग की तजबीह न दी जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है। अदरक और लहसुन की कीमतें ताहाल आसमान से बातें कर रही हैं। आलू 60, टमाटर 150, गाजर 160 रुपए फी किलो पर बरकरार, प्याज 220, मटर 237 और हरी मिर्ची 240 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम है। भिंडी 250 और शिमला मिर्च 320 रुपए फी किलो पर ही बरकरार। अदरक और लहसुन 600 रुपए फी किलो पर फरोख्त जारी। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ताजर दोस्त स्कीम के रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं कि ज़्यादातर दूध फरोश पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए मोबाइल ऐप चलाना मुश्किल होगा। इस मामले पर ईद की छुट्टियों के बाद मुशावरत करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना की इस रिपोर्ट में। ताजिर दोस्त स्कीम पर तमाम तंजीमों के साथ दुकानदार भी परेशान। FBR ने हर दुकानदार को स्कीम में रजिस्टर होना लाजमी करार दे दिया। सूरत हाल पर मुल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि 80% दूध फरोश पढ़ना लिखना नहीं जानते। इनके लिए मोबाइल ऐप चलाना आसान ना होगा। देखिए जी, जहाँ तक हमारे दुकानदार का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हमारे यहाँ 80 से 90% लोग जो है वो गैर तालीम याफ्ता हैं। वो ऐप चलाना तो हमारे जैसे के लिए अगर समझना मुश्किल होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं समझता कि वो कर पाएंगे। अब्दुल वहीद गद्दी बोले, सब टैक्स देना चाहते हैं मगर इसके लिए आसान तरीक़ेकार होना चाहिए। देखिए एक मौजूद शहरी के नाते किसी भी शख्स को टैक्स देने से इनकारी नहीं होना चाहिए, और हम भी टैक्स देना चाहते हैं, हमारे नुमाइंदे भी टैक्स देना चाहते हैं, मगर उसका तरीक़ेकार वाज़े तौर पर आसान हो ताकि वो बाआसानी अदा करें। अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि अब तक ताजिर दोस्त स्कीम पर एसोसिएशन में कोई मुशावरत नहीं हुई। इजलास के बाद ही कोई लाए अमल तैयार हो सकेगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान आलमी बॉन्ड्स की $1 अरब की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से ट्वीट के जरिए आगाह किया गया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड के $1 अरब की अदायगी कर दी गई। 12 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड के असल और सूद के साथ $1 की अदायगी होगी। बैंक एजेंट के जरिए बॉन्ड्स होल्डर्स को अदायगी की गई है। महंगाई ने कारोबार को मांग कर दिया। ईद सीजन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 60% कारोबार कम हुआ। कराची कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान का कहना है, चांद रात को मार्केटों में रश होने के बावजूद कारोबार पहले के मुकाबले में शदीद मुतासर हुआ। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। महंगाई से ईद की खुशियां भी फीकी, शहरी खरीदारी ना कर सके, दुकानदार का कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। कराची कोऑपरेटिव मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान का कहना है, पहले के मुकाबले में कारोबार 60% मुतासिर हुआ, जिसकी सबसे अहम वजह बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। पब्लिक में रश होने के बावजूद परचेजिंग पावर पब्लिक के पास नहीं थी,
वजह ये थी कि बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे थे, लोगों के पास गैस के बिल भी बढ़े हुए हैं, ऊपर से पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया था। तो और फिर एक और मुसीबत बच्चों के साथ ये हुई है, स्कूल के बच्चों की भी फीसें देनी पड़ी माँ बाप को। मार्केट में दुकानदारों का कहना है ईद की छुट्टियों के बाद दुकानों में माल मौजूद है, जो कारोबार मुतासिर होने का वाज़ेह सबूत है। तो डेफिनेटली महंगाई की नज़र हुआ है ये वाला सीज़न भी। अगर मैं प्रीवियस 2023 को देखूँ और 2024 को देखूँ तो ग्राफ काफ़ी नीचे की तरफ गया है, यानी इतना नीचे गया है कि परचेजिंग पावर 40% अगर मैं बोलूँ तो गलत ना होगा। मतलब बीवी बच्चों की शॉपिंग कराएं, वो तरजीह दे रहे थे कि पहले उनकी शॉपिंग करा लें, वो उन्होंने अपनी उनकी कराई तो फिर उनके लिए उनके पैसा इतनी अमाउंट नहीं बची थी, फिर यहाँ पर आके वो समझ ले कि 1500 को छोड़े, उसको बोल रहे हैं 700 ले लो, 800 ले लो, 1200 ले लो, इस तरह की पोजीशन आ रही है। सलीम खान का कहना है जब तक महंगाई में कमी नहीं होगी आवाम की कुव्वत खरीद बहाल नहीं हो सकेगी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। अब आपको बताएंगे ईद का चौथा रोज दावतें उड़ाने के बाद शहरियों ने सफारी पार्क का रुख कर लिया। इंतजामिया ने जिपलाइन की टिकट पर 50% राय दे दी। यहाँ आने वालों के मजे हो गए, किसी ने डायनो सफारी की तो किसी ने जिपलाइन को एंजॉय किया, जबकि खुशगवार मौसम ने सफारी पार्क में पिकनिक के लिए आने वाले शहरियों का मजा दोबारा कर दिया। ये रिपोर्ट देखें। दावतें उड़ाने के बाद सैर सपाटे, किसी का सी व्यू का रुख और कोई पहुंचा सफारी पार्क। इंतजामिया भी ईद की खुशी में शरीक, जिप लाइन पर 50% की रियायत दे दी। बसों में भरकर फैमिलीज पिकनिक के लिए सफारी पार्क पहुंची। बच्चे घर वालों के साथ सैरो तफरी करने में मगन, कोई रेलगाड़ी में घूम रहा था तो कोई झूले झूलने में मसरूफ। बच्चे जानवरों को देखकर खुशी का इजहार करते नजर आए। सुहाने मौसम ने सफारी पार्क में पिकनिक के लिए आए शहरियों का मजा दोबाला कर दिया। अच्छा माहौल है माशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी माशाल्लाह अच्छा खुशगवार हो गया है, जिसकी वजह से फैमिली को आज हम लेके आए हैं, अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद के मौके पर फ्लाई सफारी की जानिब से शहरियों को 50% डिस्काउंट देकर खुसूसी रियायत दी गई। शहरियों ने कहा फ्लाई सफारी केएमसी और सफारी पार्क की तरफ से अच्छा इकदाम है, हमने बहुत एंजॉय किया। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, एडवेंचर वगैरह होना चाहिए ताकि डर वगैरह खत्म हो, डिफरेंट चीज़ें पाकिस्तान में पता चले, हाँ भाई पाकिस्तान है, कुछ डिफरेंट है, यहाँ कुछ नया है। फ्लाई सफारी हेड रजा कहते हैं हमारा मकसद ईद में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह फराहम करना है। फ्लाई सफारी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लोगों के लिए, लोगों की इंजॉयमेंट के लिए। ईद के मौके के ऊपर सफारी पार्क कराची का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ पे हज़ारों लोग जो है वो ईद के पहले दिन से आ रहे हैं और केएमसी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग की लोगों को डील करने के लिए और उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने 50% प्राइसेस अपनी तमाम राइड्स की गिरा दी, जिसके अंदर जिप लाइन है और बंजी जंप है। फ्लाई सफारी की राइड में जिप लाइन और बैंक जंपिंग शामिल है, जिसमें ईद के 5वें रोज तक डिस्काउंट जारी रहेगा। ईद की छुट्टी के आखिरी रोज शहरियों के सैर सपाटे जारी, लोगों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख किया। कराची के चिड़ियाघर में बच्चे बड़े जानवरों से महसूस होते रहे। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट पे। कराची का तारीखी चिड़ियाघर हर त्योहार में शहरियों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा, शहरी बच्चों के साथ यहाँ का रुख जरूर करते हैं। आज भी कराची के चिड़ियाघर में जंगली जानवर बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज बने रहे। किसी ने बत्तखों को पॉपकॉर्न खिलाए तो कोई बंदरों को फल पेश करता रहा। चिड़ियाघर की ट्रेन और स्टॉल्स पर फरोख्त होने वाले खाने बच्चों को खूब भाए। बच्चों का कहना था कि जंगल के बादशाह शेर को करीब से देखकर हैरत हुई, लेकिन डर नहीं लगा। शेर को देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि हम टीवी में देखते पर आज रियल देख के बहुत अच्छा लगा। दुआ के मैं बहुत मजा कर रही हूँ। शहरी बोले कि चिड़ियाघर इसलिए आए हैं ताकि बच्चे जानवरों को करीब से देख सकें। बच्चों ने आज करीब से जानवरों को देखकर बहुत अच्छा महसूस किया। लोगों की बहुत ख्वाहिश थी बहुत दिनों से कि मैं देखूं, तो मैंने कहा बच्चे बड़े होते यार, अब देखे तो एंजॉय करें। बस बच्चे खेल लेते हैं कि जानवर देख लेंगे, खुश हो जाएंगे देख के। चिड़ियाघर न सिर्फ एक बेहतरीन तफरीही मकाम है, बल्कि यहाँ जंगलों में पाए जाने वाले तमाम जानवरों की इकसाम और उनकी तारीख भी फराहम की जाती है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ईद की छुट्टी और सुहाने मौसम ने शहरियों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद सी व्यू पर पहुंच गई। कोई दोस्तों की टोलियों के साथ मौसम एंजॉय करता रहा तो किसी ने खानों पर दिल खोलकर हाथ साफ किया। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। कराची का साहिल फिर आबाद हो गया। ईद की छुट्टी में मौसम खुशगवार होते ही शहरियों की बड़ी तादाद अपने पसंदीदा तफरीही मुकाम सी व्यू पर खींची चली आई। बड़ों ने सुहाने मौसम और ठंडी हवाओं का खूब लुत्फ उठाया तो बच्चे घोड़े, ऊंट की सवारी और खानों में मसरूफ नजर आए।
आए। शहरी बोले CVU आकर सबने खूब एंजॉय किया। मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ईद के चौथे दिन हम आए। CVU में हम देखा कि मौसम अच्छा है, हवा चल रही है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम अपने बच्चों के साथ आए, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। 3 दिन घर पे गुजार दिए, बस अभी तक गए यहाँ पे आके घूमने के लिए आ गए, बस एंजॉय कर रहे। बच्चों का कहना था कि 3 दिन गर्मी ने परेशान किए रखा, आज ईदी खुलकर खर्च की। मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ और मौसम काफ़ी अच्छा है और मैं यहाँ बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। काफ़ी गर्मी थी ईद के तीनों दिन, लेकिन आज समुद्र पे काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। इन्होंने ईदी पैसे जमा किए थे, इन्होंने कहा था कि जो ना घुमाने लेके चलो, मैंने चलो इधर CVU आते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा था तो इस वजह से हम इधर आए घूमने फिरने। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में 15 अप्रैल तक बारिशों की नवीद सुना दी गई। खुशगवार मौसम ने न सिर्फ शहर की खूबसूरती को निखारा बल्कि लोगों के मिजाज पर भी مثبت असरात मरतब करता है। कैमरामैन शकील खान के साथ आयमा खान, City 21। योमिया उजरत पर काम करने वालों की ईद भी कसम पुरसी में गुजर गई। काम न मिलने से फुटपाथ किनारे बैठे मजदूर ईद पर भी खुशियों से महरूम रहे। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान की इस रिपोर्ट में। ईद हर साल खुशियों का पैगाम लाती है, लेकिन इस बार बहुत से चेहरे जरिया माश के हवाले से परेशान नजर आए। सड़क किनारे बैठे योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर महंगाई और काम ना मिलने से अजियत में मुब्तला। अफसुर्दा बैठे मजदूरों का कहना है कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी। ईद के तीनों दिन दिहाड़ी की आस में बीत गए, अब तो कई दिन तक काम नहीं मिलता। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि महंगाई इतनी है कि हर आदमी महंगाई से पीछे भाग रहा है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से बन लगाएगा। ईद खाएगी कैसी ईद? गरीब की कोई ईद नहीं है क्योंकि महंगाई इतनी है। अब रोटी लेने जाओ तो 25-30 रुपए की रोटी है। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? उसके 4-6 खाने वाले हों। मैंने पूरे मई से रमज़ान के अंदर सिर्फ 2 दिहाड़ियाँ लगाई हैं। कितने की? 1200 रुपए का। मुझे बताओ, मेरे पीछे इतने खाने वाले मैं कहाँ से पूरा करूँगा? बेलचा, फावड़ा, छेनी, पेंट ब्रश और प्लास्टर का सामान सजाए इन मजदूरों की आंखें सुबह से शाम तक आने जाने वालों पर टिकी रहती हैं और अक्सर सरशाम मायूस घरों को लौट जाती हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, City 21। कराची में बर्फबारी के मजे। जी हाँ, कराची में एक ऐसी जगह जहां आप बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। एंजॉय करने के लिए फैमिलीज ने विंटरलैंड का रुख किया। मज़ीद जान लेते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, कराची में बर्फबारी ये देखने और सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, मगर कराची वाले ईद की छुट्टियां तो अभी जारी हैं और जबकि ईद ख़त्म हो चुकी, कराची वाले इस वक्त विंटरलैंड में मौजूद हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, कराची में बर्फबारी, अब आपको ना मरी जाना पड़ रहा है, ना सवाद, ना नारान, ना कागज। जी बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा है। दिल गार्डन और ठंडा नहीं हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो फैमिली के साथ आप आई हैं? जी फैमिली के साथ आई हूँ, ये मेरी सिस्टर है। बिल्कुल जी, आइए इनसे भी बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी बताइए कैसा लग रहा है? वी एंजॉयड अ लॉट, लिटरली बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल जी, बहुत मजा आ रहा है। लोग इस पल को मिस नहीं करना चाहते, मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, फैमिलीज हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, कराची में बर्फबारी बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार है। जो ईद की छुट्टियाँ हैं उसे खूब इंजॉय कर रहे हैं? बहुत। कैसी गुजरी आपकी ईद और आपकी छुट्टी कैसी? बहुत अच्छी और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल जी, बेहतरीन जगह ही, बहुत मजेदार है। और अगर आपके पास टाइम कम है या बजट कम है तो आप मुख्तसर वक्त में यहाँ पर आ सकते हैं और बर्फबारी के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जो शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त विंटरलैंड में मौजूद है जो कि बर्फ़ से बनी हुई चीज़ों के साथ साथ मसनूई बर्फबारी से खासी लुत्फानंदोज हो रही है। जी, अब आप कराची में ही यूरोप और खलीजी ममालिक के नज़ारे कर सकेंगे। खूबसूरत और जदीद तर्ज की स्ट्रीट कायम कर दी गई। ये स्ट्रीट कहाँ है और इसकी क्या खुसूसियात हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। तो आज हम मौजूद हैं कराची के एक ऐसे स्ट्रीट पर जहां आते ही आपको गुमान होने लगता है आप या तो दुबई में हैं या फिर यूरोप में हैं। जी हाँ, कराची में एक ऐसे ही
बैन अल-अक़वामी तर्ज की स्ट्रीट कायम कर दी गई है और जिसमें तमाम चीज़ें उसी इंटरनेशनल तर्ज की बनाई गई हैं जो आजकल कराची वालों की ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। आखिर ये स्ट्रीट कहाँ है, किस जगह है और इस पे क्या खास बात है, तो आइए आपको बताते हैं। कराची में एक शानदार तरक्की का आगाज। शहर कायद में दुबई और यूरोप जैसे नज़ारे। शहर में पहली बैनुल अक़वामी म्यार की स्ट्रीट तैयार जो रोशनियों के शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस है। बुखारी कमर्शियल की ये स्ट्रीट पाकिस्तान की रिवायती स्ट्रीट से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद है। जदीद तरीन डिजाइन म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाता है। स्ट्रीट अवामी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पैदल चलने वालों के लिए न सिर्फ अलग रास्ता बल्कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ साथ अलग सिग्नल भी दिया गया है। आग लगने की सूरत में फायर हाइड्रेंट भी नस्ब किया गया है। इसके साथ साथ बेहतरीन पार्किंग एरिया भी वक्फ कर दिया गया है। पैदल चलने वालों की आसानी के लिए भी सिग्नल पर एक बटन नस्ब किया गया है। इसको दबाते ही आप रोड बआसानी तरीके से पार कर सकते। खूबसूरत और दिलकश मंजर की अक्कासी करती इस स्ट्रीट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, स्पेशली कराची वालों के लिए जो ये बनाया गया है। हमारे लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत अच्छी वाइब आई भी है और बीइंग मुस्लिम हम लोगों को बस अब इसकी जो है ना सफाई रखनी है। पूरा जिस तरह गवर्नमेंट ने या जिन्होंने भी ये बनाया है उसका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको क्लीन रखें। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर और हम लोग एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। बहुत अच्छा बनाया है सेटअप, जितना भी इसके अंदर जो भी करा हुआ है, जितनी भी मतलब इसके अंदर वर्क हुआ है, जितना भी, वो बहुत अच्छा है। अपने शहर के अंदर नहीं है, दुबई आ गए। शहरी खुशी का इजहार करते कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं दुबई या यूरोप में है। शहरियों का हुकूमत से दरख्वास्त करते हुए कहना था कि पूरे शहर को इसी स्ट्रीट की तरह बनाया जाए। कराची में इंटरनेशनल म्यार की स्ट्रीट्स बनना शुरू हो चुकी हैं और बनने वाली की पहली स्ट्रीट अवामी तवज्जो का मरकज बनी हुई है और इस पे हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसकी सफाई सुथराई और इसकी मेंटेनेंस का ख्याल हम खुद भी रखें। कैमरा टीम के साथ राहिल बेग, सिटी 21। ईद का चौथा रोज बच्चों और बड़ों की मौज मस्ती जारी। शाह फैसल कॉलोनी में लगा ईद मेला शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। बच्चे मुख्तलिफ इक़साम के झूले और ऊंट और गुड़ सवारी करने में मसरूफ़ हैं। कहते हैं कि जो ईदी जमा हुई इससे एंजॉय करना है। अभी उनकी सवारी करने यहाँ आए हैं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। बच्चों की ईदी अभी बाकी, ईदी मुकाव मिशन भी नामुकम्मल। ईद मेले का रुख कर लिया। शाह फैसल कॉलोनी का मेला सबकी तवज्जो का मरकज। बच्चे मुख्तलिफ इक़साम के झूले झूलते रहे। ऊँट की सवारी करते हुए बच्चों ने कहा कि ईद का मौका है, ईदी समेटी है, अब झूले झूलने और ईदी खर्च करने के आए हैं। मैंने कश्ती वाला झूला झूला है, ऊँट की सवारी की है और ना जंपिंग की है और वो जो घूमने वाला है ना गोल वाला वो वाला किया। जब तक ये हैं सब बग्गी घोड़े वाले, जब तक तो जारी है, बच्चों के शौक है, जे दे के चले और हम लोग तो मलिर से आए यहाँ पे। ईद मेले में बच्चे कहीं ऊँट की सवारी करते रहे तो कहीं घुड़ सवारी में मसरूफ रहे। इस मौके पर वालिदैन भी उनके हमरा मौजूद रहे और बच्चों की खुशियों में शामिल रहे। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। ईद तो ख़त्म हो गई लेकिन छुट्टियां अभी भी बाकी हैं। ईदी भी जेब में है और लोग घर में कैसे रुके। शहरियों ने मुकामी पार्कों का रुख कर लिया। रात के इस पहर भी शहरी कराची के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते सैयद जुबैर राशिद से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें कराची का मौसम जो है काफ़ी हद तक सुहाना हुआ है और शहर कायद के जो बासी हैं वो काफ़ी हद तक हम इंजॉय करते हुए दिखाई दे रही हैं। नन्ही पड़ियाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि भाई ईद के बाद ये जो छुट्टियाँ हैं इसको किस तरीके से इंजॉय कर रही हैं। बेटा मुझे बताइए कितनी ईदी जमा हो गई और इन छुट्टियों को किस तरह इंजॉय कर रही हैं? कुछ छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। मेरी ईदी 12,000 में 50 रुपये कम है। 12,000 रुपये में 50 रुपये कम है, तो 50 रुपये क्यों कम है? 50 रुपये नहीं हुए ना, अभी बस इतने ही हुई है। ले भाई, ये बच्ची को शिकवा है कि 12,000 में अभी 50 रुपये कम है। बेटा आप बताइए कितनी ईदी जमा हो गई और किस तरह एंजॉय कर रही हो? 3,000 जमा हो गई। आपके तो पैसे कम नहीं बचे? बचे अच्छा, एक को 12,000 मिली, आपको 3,000 क्यों मिली?
मैं दूसरे घर में नहीं जाती। इंजॉय किया जा रहा है और शिकवा भी है कि किसी को 12,000 मिली है, किसी को 3,000 मिली है। छोटे बाबा है, बेबी है? बेबी है, सही। अच्छा मुझे बताएं, आज यहाँ पर गार्डन में खूब हल्ला गुल्ला भी किया, किस तरह से फैमिली के साथ एंजॉय किया? बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, मौसम को एंजॉय कर रही हैं? हाँ। सही है, सही से। आप किस तरीके से मौसम को एंजॉय कर रही हैं और कुछ खाना खाया पिया? यस। सही। यहाँ पे फैमिलीज जो है यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। ये भी शिकवा है कि भाई 12,000 रुपये में 50 रुपये कम है, लेकिन यकीनन कराची के जो बासी हैं इसी तरीके से मुकामी जो गार्डन्स हैं वहीं पर मौजूद रहते हैं और यहाँ पर जो है इसी तरीके से फैमिलीज जो है मुकामी पार्कों की जानिब हमें गामजन दिखाई देती हैं और इंजॉय करते हुए दिखाई देती हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।